Class 5, Unit 4, The Bamboo Princess. A Japanese folk tale from JCERT English textbook Sunshine. यह कहानी एक जापानी लोक कथा पर आधारित है। बच्चों, बैम्बू यानी बांस और प्रिंसेस यानी राजकुमारी। तो यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की है जो बांस के बीच मिली थी। आइए पढ़ते हैं। An old bamboo cutter was going home in the evening. बांस काटने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति शाम के वक्त अपने घर जा रहा था। Far away, among the stalks of the feathery bamboo, he saw a soft light. दूर नरम बांसों के डंडियों के बीच उस बूढ़े व्यक्ति ने एक हल्की रोशनी देखी। He went nearer to see what it is. उसने पास जाकर देखना चाहा कि वह क्या है। And found, और उसने पाया that it came from within one of the stalks. कि वह रोशनी बांस के एक डंठल के बीच से आ रही थी। He opened the bamboo stalk carefully. उसने सावधानी पूर्वक उस बांस के डंठल को चीरा। And found a tiny baby girl. और उसके अंदर उसे एक छोटी सी बच्ची मिली। She was only a few inches tall, but as beautiful as a fairy. वह केवल कुछ इंच लंबी थी, परंतु एक परी समान सुंदर थी। Indeed, he wondered if she was really a fairy. वह सोचने लगा कि क्या वास्तव में वो एक परी थी। He carried her home and told his wife how he had found her. वह उसे अपने घर ले आया और अपनी पत्नी को बताया कि कैसे वह उसे मिली। They became very glad as they had no child. दोनों बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका कोई संतान ना था। They loved her as their own. वे उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगे। In a few years, she had grown to be a young girl. कुछ वर्षों में वह बच्ची जवान हो गई। She was sweet, kind, and beautiful. वह बहुत प्यारी, दयालु और सुंदर थी। A soft light always seemed to follow her. वह जहाँ भी जाती मानो एक हल्की रोशनी उसके साथ चलती थी। When the time came to name her, they called her Bamboo Princess. जब उस बच्ची का नामकरण करने का समय आया, तो उसका नाम रखा गया Bamboo Princess, because she was found among the bamboos. क्योंकि वह बांस के झुरमुट में पाई गई थी। She was very beautiful and different from others. वह बेहद सुंदर और दूसरों से अलग थी। People heard of how beautiful she was. लोगों ने उसकी सुंदरता के बारे में सुना। And many of them peeped through the hedge to have a glimpse of her. उनमें से बहुत लोग झाड़ियों से झांककर उसकी एक झलक पाने की कोशिश करते थे। Anyone who looked at her came again and again to see her. जो कोई उसे देख लेता, वह उसे बार-बार देखने आता। Among those who came often to the hedge were 5 princes. जो लोग उसे बार-बार देखने आते थे, उनमें से 5 राजकुमार थे।
Each one thought the bamboo princess was the most beautiful girl he had ever seen and wished her to be his wife. हर एक राजकुमार को लगता था कि बैम्बू प्रिंसेस जैसी सुंदर लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी और चाहते थे कि वह उनकी पत्नी बने. So each of the 5 princes sent proposal to the father of Bamboo Princess asking her to marry her. इसलिए 5 राजकुमारों में से प्रत्येक ने बैम्बू प्रिंसेस के पिता को शादी का प्रस्ताव भेजा. It so happened that all 5 proposals were brought to the old man at the same time. सभी के प्रस्ताव बूढ़े व्यक्ति के पास एक ही समय पर पहुंचे. The old man did not know which one to choose nor what to do. बूढ़े व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि वह किसे चुने या क्या करे. He was afraid that if he chose one of the princes, the other 4 would be angry. उसे डर था कि यदि वह किसी एक राजकुमार को चुनता है तब बाकी 4 नाराज हो जाएंगे. But the princess had a plan. परंतु राजकुमारी के पास एक योजना थी. Let them all come here, then we can choose better, the princess said. सभी राजकुमारों को यहाँ बुलाया जाए ताकि हम सही चुनाव कर सके, राजकुमारी ने कहा. On a certain day, the 5 princes came to the house of the bamboo cutter. तो एक दिन वह 5 राजकुमार बांस काटने वाले के घर पहुंचे. They were very glad to have another chance to see her. वह राजकुमारी को एक और बार देखने का मौका पाकर बहुत खुश थे. Each one thought he would be the one she would marry. हर एक ने सोचा कि राजकुमारी उसी से शादी करेगी. But the princess did not want to marry any one of them. परंतु राजकुमारी उनमें से किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी. She wanted to stay with her dear father and mother. वह अपने प्रिय माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी. She wanted to take care of them as long as they lived. वह जीवन भर उनकी देखभाल करना चाहती थी. So she gave each prince a challenge which was impossible to do. इसलिए उसने प्रत्येक राजकुमार को एक चुनौती दी जिसे करना असंभव था. To the first prince, she asked to go to India and find the great stone bowl of Buddha. पहले राजकुमार को उसने भारत जाकर भगवान बुद्ध के पत्थर के कटोरे को ढूंढ कर लाने को कहा. The second prince was asked to bring her a branch from the jeweled trees that grew on the floating mountain of Horai. दूसरे राजकुमार को जवाहरात के पेड़ों से एक शाखा लाने के लिए कहा गया जो होराई के तैरते पहाड़ों पर उगते थे. The third prince was asked what he might do to show his love. तीसरे राजकुमार को पूछा गया कि वह अपना प्यार साबित करने के लिए क्या कर सकता है. The prince said that he might bring her a robe made from the skins of the fire rats. जिसके जवाब में राजकुमार ने कहा कि वह फायर रैट्स के चमड़ों से बना वस्त्र राजकुमारी के लिए ला सकता है. बच्चों, फायर रैट्स एक खास किस्म के चूहे होते हैं जो कि सिर्फ जापान में ही पाए जाते हैं और कहा जाता है कि आग उन्हें नष्ट नहीं कर सकता है. She asked the 4th prince to bring a jewel from the neck of the sea dragon.
उसने चौथे राजकुमार को समुद्र दैत्य के गले में लटके जवाहरात को लाने के लिए कहा। The fifth prince was asked to bring her a shell which the swallows kept hidden in their nests. पांचवें राजकुमार को उन कौड़ियों को लाने के लिए कहा गया जो अबाबिल पक्षी अपने घोंसले में छुपाकर रखते थे। The princess hurried away. Each of them was anxious to be the first to return and marry the beautiful bamboo princess. पांचों राजकुमार जल्दी जल्दी निकल पड़े। सभी को चिंता थी कि कौन पहले वापस आएगा और बैम्बू प्रिंसेस से शादी कर पाएगा। But none of them could succeed. पर उनमें से कोई भी सफल नहीं हुए। अब आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। One day, the old bamboo cutter and his wife found their daughter crying. एक दिन बांस काटने वाला बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को रोता हुआ पाया। They could not understand the reason. वे रोने का कारण नहीं समझ पा रहे थे। On a full moon night, she told her parents that she had come from the moon and she wanted to go back to the moon. और फिर एक दिन पूर्णिमा की रात को उसने अपने माता पिता को कहा कि वह चांद से आई थी और वह वहां वापस जाना चाहती थी। Suddenly the moon became brighter. अचानक से चांद और अधिक उजला हो गया। And the moonbeams covered her to take her back to the moon. और चांद की रोशनी ने उसे ढक दिया अपने साथ ले जाने के लिए। Before leaving, she wished her parents a long life. जाने से पहले उसने अपने माता पिता के लंबी उम्र की दुआ मांगी। She bade goodbye to her parents and left that place. उसने अपने माता पिता को अलविदा कहा और वहां से चली गई। The old parents were happy to see the bamboo princess go back to her own place. Bamboo princess को अपने घर वापस जाते देख बूढ़े माता पिता खुश हुए। They lived a long life as she had wished. और वह दोनों एक लंबी उम्र तक जिए जैसा कि बैम्बू प्रिंसेस ने चाहा था।